Dear friends, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the heat capacity and specific heat capacity. Now, this is the topic related to the thermal physics. Now, before discussing these actual topics, let's have a discussion on the internal energy. Now, when we talk about the energy of any object, energy can be of two types. It can be external energy, it can also be an internal energy. इंटरनल एनर्जी होती है इट्स द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस एनी ऑब्जेक्ट मींस के एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट्स इंटरनल एनर्जी नाउ दिस इंटरनल एनर्जी कैन बी ऑफ टू टाइप्स इट कैन बी internal kinetic energy or it can be internal potential energy. Now if we talk about the internal kinetic energy, अगर हम solids की बात करें तो in solids we know that molecules are continuously in a vibration. Solids के जो molecules होते हैं वो एक continuous vibration में होते हैं तो उनकी vibration की वजह से जो energy obtained होती है that energy is called the internal kinetic energy of the solids. Same like if you talk about the internal kinetic energy of liquids and gases, so the molecules of liquids and gases are in random motion. तो उन motion की वजह से जो energy होती है, that is called internal kinetic energy of the fluids, means the liquids and gases. Now this internal kinetic energy is directly proportional to the temperature. Now this is the point which we have discussed in previous lectures as well, कि internal kinetic जो energy होती है that is directly related to the temperature. That means कि अगर temperature object का increase होगा तो internal kinetic energy भी increase होगी और temperature decrease होगा तो internal kinetic energy भी decrease होगी. Now, if you talk about the internal potential energy, so that is due to the stretching and compressing of the intermolecular bonds. या फिर हम ये कह सकते हैं कि this is the kind of internal energy which is due to the intermolecular bondings between the molecules. ये वो एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से होती है. Now, we'll be having more discussion on the internal potential energy upcoming lectures. Now, coming to our topic, that is the heat capacity. Now just consider you are taking a water. Let's say we are taking the 5 kilograms of water. It's not necessary that you always take a 5 kilogram and also it's not necessary that you always take a water. We are just assuming कि हमने एक substance लिया है water और उसका हमने mass कुछ भी ले लिया है हमने assume कर लिया कि उसका हमने mass लिया है 5 kilogram. Now let's say at that time the temperature of the water is 15 degrees Celsius. ये हमने किस तरह measure किया? We just put a thermometer in the water and measured the temperature. So at that time, temperature of this water is 15 degrees Celsius. Now our purpose is to increase this temperature from 15 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. मतलब ये कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इस वाटर के टेम्परेचर को 15 डिग्री से 16 डिग्री तक इंक्रीज करना चाह रहे हैं. मींस के we are making a 1 degree rise in the temperature. Now इस टेम्परेचर को राइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, किस तरह टेम्परेचर राइज होता है? तो देखिए टेम्परेचर को राइज करने के लिए वी मस्ट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी. जब तक हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे या ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी गेन नहीं करेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. तो दैट मींस कि अगर हमने वाटर का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री तक राइज करना है तो वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. तो ये हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें जिससे क्या होगा कि इस वाटर का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा. Now जैसे ये टेम्परेचर राइज करेगा as our purpose was to increase this temperature up to 16 degree Celsius, तो what you have to do, जैसे ही आप थर्मोमीटर को नोट डाउन करते रहे जैसे ही टेम्परेचर 16 डिग्री को रीच कर जाए just stop providing the energy. आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना स्टॉप कर देना. Now आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करना स्टॉप कर दिया. After that what you have to do, you have to find out, you have to measure how much energy you have provided to increase the temperature of this water from 15 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. मतलब ये कि आपने वो amount of energy measure करना है जितना आपने provide किया to increase the temperature of the water from 15 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. तो जो amount of energy आप provide करेंगे during this time, during this 1 degree rise,
that amount of energy is called the heat capacity for that particular substance, and that is represented by a symbol capital C. नाउ अब अगर हम जनरल टर्म्स में हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें, ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस कंसीडर किया था कि वी हैव अ वाटर और उसका हमने मास 5 किलोग्राम लिया था एंड वी मेजर्ड द हीट कैपेसिटी. Now if we generally define the heat capacity, so we can say that this is the amount of energy, this is the heat capacity, the material is the amount of energy in joules, because when we talk about energy, so it is measured in joules. So this is the amount of energy in joules needed to increase the temperature of any material. Again, temperature जरूरी नहीं कि हमेशा 15 से 16 ही राइज करे, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन कितना, बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाना चाहते हैं, तो उस 1 डिग्री राइज करवाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, that amount of heat is called the heat capacity for that particular substance. तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं heat capacity. Now next point is that, देखिए अगर आप डेफिनेशन में देखें, it's mentioned that heat capacity is the 1 degree rise in Kelvin or it is the 1 degree rise in Celsius. अब हम देखते हैं कि इज इट पॉसिबल कि हम टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करें या केल्विन में मेजर करें. मींस कि जो 1 डिग्री राइज होगा इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस, फॉर दैट heat capacity will be same or the different. मींस कि अगर हम यहाँ पर we are saying that हम टेम्परेचर को किस दोनों में से किसी भी स्केल में मेजर करें, दैट मींस कि हीट कैपेसिटी मस्ट बी सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करें, चाहे हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करें. तो अब देखते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि इफ यू आर मेजरिंग टेम्परेचर इन टू डिफरेंट स्केल, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट फॉर दैट हीट कैपेसिटी. सो फॉर दैट, अगर आप थर्मोमीटर में टेम्परेचर स्केल्स को देखें, तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है और डिग्री केल्विन स्केल, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, दे आर डिफरेंट. बट अगर आप इनकी स्पेसिंग देखें या आप इनकी डिविजन्स देखें, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. मींस के जहां पर आप देखें 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, वहां पर केल्विन में इट्स 273. नाउ एट द सेम हाइट, जितनी हाइट पे 100 डिग्री सेल्सियस है, एट दैट हाइट अगर आप केल्विन में देखें तो दिस हाइट इज 373.15. दैट मींस के अगर सेल्सियस स्केल में फॉर एग्जांपल 0 से 1 डिग्री तक टेम्परेचर जो है, लेट्स से थर्मोमीटर में जो भी लिक्विड है, इफ इट इज राइजिंग बाय 2 सेंटीमीटर, तो केल्विन स्केल में भी वो 1 डिग्री के लिए 2 सेंटीमीटर ही राइज कर रहा होगा. जस्ट लाइक यू कैन सी कि अगर आप 100 डिग्री को कंपेयर करें तो दोनों स्केल्स में 100 डिग्री तक जो लिक्विड लेवल है वो सेम है. So on that basis we can say that जो 1 डिग्री होती है इन केल्विन, दैट इज इक्वल इन बोथ स्केल, दैट इज इक्वल. मींस कि अगर हम केल्विन में मेजर करें या सेल्सियस स्केल में मेजर करें, जो 1 डिग्री राइज होता है, दैट इज सेम फॉर बोथ स्केल्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट चाहे आप टेम्परेचर राइज करें केल्विन में, मींस कि अगर फॉर एग्जांपल जिस सब्सटेंस की आप हीट कैपेसिटी फाइंड करें, लेट्स से उसका टेम्परेचर है 12 डिग्री केल्विन, सो 12 डिग्री से 11 डिग्री तक राइज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी सेम इन सेल्सियस स्केल जितना उसको 1 डिग्री राइज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा. So this is, that's why we can measure the temperature in both scales for the heat capacity. Now sometimes इससे होता है कि there is a need for the conversion because these are the two commonly used scale. आपको एक स्केल टेम्परेचर को, मींस के इफ यू आर गिवन द डिग्री सेल्सियस, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर इफ यू आर गिवन टेम्परेचर इन केल्विन, यू हैव टू कन्वर्ट इट डिग्री सेल्सियस. तो अब देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरह होती है. नाउ लेट्स कंसीडर कि इफ यू आर गिवन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस and you want to convert in Kelvin. Remember this thing, Kelvin के साथ हम डिग्री नहीं लगाते because this is an absolute scale. That's why we don't put the degree for the Kelvin scale. But Celsius scale के साथ हम ये डिग्री लगाते हैं. Now, if you are given the degree Celsius and if you want to convert in Kelvin, so what you have to do, आप देखें अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, वहाँ पे केल्विन स्केल में 273.15. तो दैट मीन्स के जो भी आपको सेल्सियस स्केल गिवन है, अगर आप इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो यू विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन. Now this is 273.15. Theoretically हम इसको 273 ही कंसीडर करते हैं, तो दैट मींस कि आप इसको 273 भी ऐड करके you can find the temperature in Kelvin. Same like if you are given the temperature in Kelvin
and you want to measure the temperature in degree Celsius. So for that purpose what you have to do, जो भी आपको केल्विन की वैल्यू गिवन होगी उसमें से आपने 273.15 या 273 आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, so you will get the temperature in degrees Celsius. Now moving further to the heat capacity. अब आप देखें अगर हम इस heat capacity को mathematically देखें, so this heat capacity is represented by capital C. Remember this thing, ये small c नहीं, this is capital C. So this capital C is equals to Q divided by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. ये जो Q है that is called the heat amount of thermal energy, because Q means कि हम जितनी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइड करें, बिकॉज हमारा जो पर्पस है दैट इज टू मेक राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री. अब वो 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. तो अगर आप टेम्परेचर केल्विन में मेजर करें तो आपने इसको 1 केल्विन से डिवाइड करना है. इफ यू आर मेजरिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस तो आपने इसको डिवाइड करना है 1 डिग्री सेल्सियस के साथ. Now, अगर हम इसका SI यूनिट देते हैं, because this is a physical quantity, so definitely it will have SI unit. तो SI unit as it's a derived quantity, तो इसका जो SI unit है that can drawn from its formula. किस तरह हम draw करेंगे? अब आप देखें जो heat capacity है that is equals to amount of thermal energy divided by temperature in Kelvin or temperature in degree Celsius. So amount of energy that is measured in joules. So SI unit will be joule per Kelvin if you are measuring temperature in Kelvin, or it will be joule per degree Celsius if you are measuring the temperature in Celsius scale. So this is how, this is the SI unit of heat capacity. So this is very important. जो भी physical quantity study करते हैं, you must exactly know what is the SI unit for that particular quantity. Now moving to the further, कि देखिए heat capacity is the amount of energy required to raise the temperature by 1 degree. But अगर ऐसा हो, for example, if you are you wish to find out the heat capacity of the 5 kilogram of water, आपने water को heat up करना start किया, but you just observe कि आप ने 16 मींस के लेट से उसका इनिशियल टेंपरेचर वाज 15, बट आप 16 पे उसको हीट जो है सोर्स को स्टॉप करना भूल गए या किसी भी वजह से उसका टेंपरेचर 1 डिग्री से ज्यादा राइज कर गया, लेट से दैट रेज्ड अप टू 20 डिग्री. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब अगर आपने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इज इट कि आप दोबारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, और इज देयर एनी अदर वे जिससे हम अगर 1 डिग्री से ज्यादा राइज भी होता है तो स्टिल वी कैन फाइंड द हीट कैपेसिटी? So for that purpose, ये जो फार्मूला अभी हमने लिखा था, इस फार्मूला में डिवीजन में what we did, we just divide it with 1 Kelvin or 1 degree Celsius. So अगर हम इसको 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस के बजाय हम इसको जनरली डिफाइन कर दें कि जितना भी टेम्परेचर राइज कर रहा है, अगर वो 1 डिग्री राइज कर रहा है तो हम 1 से डिवाइड कर लें, अगर वो 2 डिग्री राइज कर रहा है हम 2 से डिवाइड करें, अगर वो 10 डिग्री राइज कर रहा है तो हम 10 से डिवाइड करें. तो फॉर दैट पर्पस हम इस फार्मूला को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं कि बजाय डिवाइडिंग इट 1 केल्विन और 1 सेल्सियस हम एक जनरल वेरिएबल असाइन कर देते हैं, दैट इज डेल्टा थीटा. ये जो डेल्टा थीटा है that represent the change in temperature, मतलब जितना भी चेंज आए, if let's consider कि अगर initial temperature 15 डिग्री सेल्सियस था, now if it has reached to 20 डिग्री तो इसमें जो चेंज आएगा that is 5 डिग्री, तो हमने इसको 5 से डिवाइड करना है. So in this way again we will get the heat capacity, because अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे still आपको वही अमाउंट मिल जाएगा जो कि 1 डिग्री राइज के लिए रिक्वायर्ड होगा. Now, अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा फर्दर अरेंज करें फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज समटाइम्स आपको हीट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एंड चेंज इन टेंपरेचर गिवन होता है, यू हैव टू फाइंड हीट कैपेसिटी. बट समटाइम्स इससे होता है हमें किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेंपरेचर गिवन होता है, we are required to find out the how much energy it will require, amount of energy required होता है. So अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें for the Q which is the amount of thermal energy, so that will become C multiplied by delta theta. C is the heat capacity and delta theta is the change in temperature. Now इससे related क्वेश्चन हम देख लेते हैं. A cup of coffee at 80 degrees Celsius is left to cool to 30. आपके पास एक कप ऑफ कॉफी आपने रूम में रख दिया, सो डेफिनेटली जब आप उसको रूम में रखेंगे तो इट विल कूल डाउन, उसका टेंपरेचर 80 से 30 पे आ गया. इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कप एंड कॉफी इज 2000 joules per degree Celsius,
how much heat is released during the cooling. Now remember this thing कि heat जो होती है thermal energy, it's not necessary कि हमेशा object gain करे. अगर टेम्परेचर उसका राइज कर रहा है तो वो हीट गेन करेगा, अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो सब्सटेंस हीट एनर्जी रिलीज करेगा. जस्ट लाइक इन दिस केस जो कॉफी होगी इट विल बी रिलीजिंग द थर्मल एनर्जी. नाउ अब हमने वो अमाउंट फाइंड करना है. सो अब आप देखें, अभी हमने फार्मूला इसका ड्रॉ किया है. दैट फार्मूला इज Q इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा. अब सारी वैल्यूज हमें गिवन है, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज. अब देखिए डेल्टा थीटा जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टेम्परेचर. So if temperature is changing from 80 to 30, अब अगर हम इसमें से चेंज फाइंड करना हो तो सिंपली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम द 80, तो हमारे पास चेंज आ जाएगा 50. सो इन दिस वे इस जो ये हीट रिलीज करेगा, ये जो हीट मींस के ड्यूरिंग दैट कूलिंग प्रोसेस जो हीट रिलीज होगी दैट इज 100,000 जूल. अब आप देखें दिस इज अ लार्ज वैल्यू. You can also write this value in a scientific form. ठीक है, ये एक appropriate way होता है if you are getting a larger value or a very smaller value, so आप उसको scientific form में लिखें. So अगर हम इसको scientific form में calculate करें, so that is 1 into 10 power 5 joules. Now there is an other question, means के जो heat capacity से related different ways में question आता है exam में. Now this is one example. आपने ये बताना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी. मतलब ये कि आपने प्रॉपर डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है हीट कैपेसिटी की. अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, और उसका मास भी कुछ भी हो सकता है, बाय 1 डिग्री. अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सब्सटेंस को रिक्वायर्ड होता है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 डिग्री तक राइज करने के लिए दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. सो फॉर दैट अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर लुकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, जस्ट विद वन डिफरेंस के ऑप्शन बी में देखें it's mentioned that the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance through 1 degree Celsius. So remember this thing, for heat capacity, mass is not fixed. Just like we considered 5 kilogram of mass. आप कुछ भी mass consider कर सकते हैं. Means के mass substance का कुछ भी हो सकता है. It can be 5 kilogram, it can be 10, 12, whatsoever. So that means that this is not the definition of heat capacity. Heat capacity की simple definition ये होती है the quantity of heat requires to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius. Now the next question is again same type of question. इसमें भी आपने बताना है which can be the correct definition for the heat capacity. A heat capacity of an object of mass 2 kg is C. The energy needed क्या होती है heat capacity? It's an increase the temperature of the whole object by delta T. अब देखिए temperature को हमने delta theta से represent किया, but sometimes it's also represented by delta T. So delta T C delta theta means के this is for the whole object, या फिर increase the temperature of the unit mass. Unit mass का again मतलब होता है 1 किलोग्राम. अगर आप ऐसा यूनिट में मेजर करें तो यूनिट मास का मतलब होगा 1 किलोग्राम. So again 1 kilogram means that this is mass is not fixed for heat capacity, so that's why again जो correct option होगा option A. Now moving के अगर for example आपने let's say just like we assume कि we consider the mass of the water 5 kilogram और उसके लिए हमने heat capacity calculate कर ली. Let's say वो हमारे पास value आ रही है 6 joules, 6 joules per degree Celsius. Now if we have some other mass of substance, let's say अब उसी water का हमारे पास 6.5 किलोग्राम mass है, 4.9 किलोग्राम mass है, 4.5 किलोग्राम mass है. Now we wish to find out heat capacity, तो क्या करना पड़ेगा हमें? Is it कि हम दोबारा से ये पूरा जो process हमने किया है, because previously we calculate the heat capacity for 5 kilograms, अब हम ये करें कि दोबारा से पूरा process repeat करें for some other mass, जो भी मास है 4.5 या 6.5 जो भी मास है उसके लिए अलग दोबारा से वो पूरा प्रोसेस रिपीट करें. सो दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट वे, दैट इज नॉट अ सूटेबल वे कि हम बार बार प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करते रहें. तो व्हाट कैन बी द अदर पॉसिबल सॉल्यूशन कि कुछ हम ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें कि हमें ये रिपीटेशन बार बार ना करनी पड़े, हम एक ही बार प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लें, उसके बाद वी कैन फाइंड आउट इजीली थ्योरेटिकली. नाउ फॉर दैट पर्पस अगर हम एक बार ये कर लें कि उस सब्सटेंस जिसकी हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, वी कंसीडर द मास ऑफ दैट सब्सटेंस 1 किलोग्राम. मतलब ये कि हम उस सब्सटेंस का 1 किलोग्राम लेके उसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड कर लें.
जब हम 1 किलोग्राम के लिए फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद जितना भी मास होगा, जस्ट लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है फॉर द वाटर, हमने 1 किलोग्राम लेके हीट कैपेसिटी फाइंड कर ली, लेट्स से दैट इज 3 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद वाटर का जितना भी मास होगा, लेट्स से अगर हमारे पास 6 जूल है तो सॉरी 6 किलोग्राम से, तो हमने 3 जूल्स को 3 जूल पर डिग्री सेल्सियस को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारे पास 4.5 किलोग्राम है तो हमने 4.5 को उस हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जितना भी हमारे पास मास होगा हम थ्योरेटिकली उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। मींस कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर प्लेट से जितना भी मास है उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री तक राइज करना है तो हाउ मच एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड। नाउ ये जो हमारे पास अब एक हीट कैपेसिटी का एक स्पेसिफिक फॉर्म बन गया, एक स्पेशल केस बन गया जिसमें हम सब्सटेंस के मास को कंसीडर कर रहे हैं 1 किलोग्राम। तो ये जो स्पेशल केस होता है हीट कैपेसिटी का, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का मास को 1 किलोग्राम कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मींस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट इट्स एन स्पेशल फॉर्म ऑफ द हीट कैपेसिटी जिसमें हम सब्सटेंस के मास को फिक्स करते हैं टू द 1 किलोग्राम। So अब आप definition देखें, there is a just a small difference in between heat capacity and specific heat capacity is that स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ हम ये चीज ऐड कर देते हैं कि जिस सब्सटेंस के लिए हम फाइंड कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसका हमने मास लेना है 1 किलोग्राम। तो उस 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को जो 1 डिग्री राइज तक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें या अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखना चाहें तो देखिए हीट कैपेसिटी जो होता है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर की बात कर रहे हैं, आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर ली, दैट इज 3 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास वाटर का कुछ भी मास है, लेट्स से वो 2 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम है, तो आपने अगर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू को आपने मास से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आपके पास आ जाएगी हीट कैपेसिटी। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला अगर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करना, बिकॉज अगर समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है आपको हीट कैपेसिटी और मास गिवन हो, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो दैट विल बिकम हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी को हम मास से डिवाइड करेंगे तो वी गेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन we can find out what can be the SI unit for the specific heat capacity। अब देखें हीट कैपेसिटी में ये क्वांटिटी नहीं थी डिवाइडेड बाय मास, सो दैट्स व्हाई उसका जो यूनिट था दैट वाज जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये जो हीट कैपेसिटी है दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय द मास। तो इसका मतलब है जब हम इसका एसआई यूनिट फाइंड कर रहे होंगे तो वी आल्सो हैव टू डिवाइड विद द एसआई यूनिट ऑफ मास, सो दैट इज किलोग्राम। So SI unit for the specific heat capacity will become joules per Kelvin per kilogram if you are measuring temperature in Kelvin, or it will be joule per degree Celsius per kilogram if you are measuring the temperature in degree Celsius. So this is how we can find out heat capacity and specific heat capacity. Now one more thing कि जिस तरह हमने ये कहा था कि heat capacity is represented by capital C, similarly जो specific heat capacity होती है that is represented by small c. तो that is difference in between them, that's why I just emphasized on the letters कि because they look like same। जो हीट कैपेसिटी होती है वो जस्ट कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। अब देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एज वी हैव डिस्कस्ड कि दिस इज वन टाइम कैलकुलेटेड वैल्यू, सो देयर आर दीस आर द सम एग्जांपल्स या दीस आर द सम कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी की जो वैल्यू इज गिवन है इन जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर ग्राम में। मोस्टली वी प्रेफर द एसआई यूनिट्स, तो दीस आर द वैल्यूज इन जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसमें जो कॉमनली यूज्ड है दैट इज वाटर, because ये water commonly used substance होता है, so you at least you must remember the value for the heat means the specific heat capacity for the water that is 4200 joules per kilogram per degree celsius। इसके अलावा अगर कोई और substance होगा तो most of the time you will be given the value। water के लिए भी होता है, question में mostly given होती है, but at least ये because this is commonly used तो at least आपको ये एक value याद होनी चाहिए। नाउ मूविंग कि अगर हम यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के दरमियान थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशन देखें, सो हीट कैपेसिटी एज आई टोल्ड यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, सो दैट इज इक्वल्स टू मास multiply by specific heat capacity that is represented by small c। so this is the equation, means के जो capital C होता है that is mass multiply by small c।
अब देखिए प्रीवियसली हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर द हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो अब अगर इस कैपिटल सी की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करें, सो दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, q अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू mc। अब अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें फॉर द q जस्ट लाइक वी डिड इन द प्रीवियस केस, जब हम हीट कैपेसिटी के लिए फाइंड कर रहे थे तो हमने इक्वेशन को अरेंज किया था फॉर द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। सो सेम वे अगर हम अब इस इक्वेशन को अरेंज करें फॉर द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, सो दैट विल बिकम, ये जो डेल्टा थीटा है this is dividing on left side, so जब ये right hand side पे जाएगा तो it will multiply, so that will become mc delta theta। अब ये जो इक्वेशन है q equals to mc delta theta, this equation is called heat equation and this is the widely या you can say mostly used equation in the thermal physics। ये बहुत ज्यादा यूज होती है, so you must remember कि ये क्या है इक्वेशन and what are the different variables in this equation। क्या है इक्वेशन q equals to mc delta theta, जिसमें जो m है that is the mass of the substance, q definitely that is in amount of thermal energy, but remember this thing, आपने इनके units पे properly focus करना है, ठीक है ना। as we are calculating all these quantities in SI units, तो आपने सबको SI unit में measure करना है। इसके amount of energy that will be joules, mass in kilogram, this c, remember this thing, this is small c means that this is the specific heat capacity and that is measured in joule per kilogram per Kelvin, or it can be joules per kilogram per degree Celsius। आप जिस भी स्केल में टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो इसका यूनिट अकॉर्डिंग टू दैट होगा। सिमिलरली जो डेल्टा थीटा है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब ये चेंज इन टेम्परेचर भी केल्विन में भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन आप टेम्परेचर किस स्केल में मेजर। नाउ ये जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हीट इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की है, क्वेश्चन इज दैट a domestic hot water tank contains 200 kilograms of water at 20 degrees Celsius। ठीक है ना, हॉट वाटर टैंक है जिसमें वाटर का जो मास है 200 किलोग्राम से और वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू हीट दिस वाटर टू 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि जब आप वाटर हीटर ऑन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर राइज करेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी विल इट रिक्वायर to raise its temperature from 20 to 70 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू गिवन है 4200, ठीक है ना, ये भी हमने टेबल में भी देखा था, दैट इज 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखें हमने जो फाइंड करना है दैट इज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। सो दिस इज द इक्वेशन जो अभी हमने हीट इक्वेशन ड्राइव की है। सो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने पुट करनी है। सो मास इज 200 kilograms, specific heat capacity is 4200 and delta theta is change in temperature। So as temperature is changing from 20 to 70 degrees, so that means the change will be 50 degrees, ठीक है ना। अब सिंपली तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, you will get the amount of thermal energy required। Again this is a large value, so it's better कि हम इसको scientific form में लिखें, so that will be 4.2 into 10 power 7 joules। Now there is one more question, thermal energy of the 2000 joules means that in this question you are already given the thermal energy to 12,000 joules that is supplied to a 2 kilograms mass of copper। previous case में water था, यहाँ पर copper है। इस अब जाहिर सी बात है जब कॉपर है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको कॉपर की गिवन होगी, दैट इज 4000 joules पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ पर ये बताना है व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना राइज होगा। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास यही सेम है, just we have to arrange the equation according to the required quantity। अब यहाँ पर जो हमारे पास required quantity है that is change in temperature delta Q। so अब अगर हम इस equation को arrange करें so that equation will become delta, oh sorry not delta Q but delta theta, that will become Q upon mc। अब सिर्फ हमने values put करनी है, Q that is amount of thermal energy 12,000 joules, mass is 2 kilograms and specific heat capacity is 400। तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। इट मींस द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट to raise the temperature of a 2 kilograms block of metal by 20 degree।
अब यहाँ पर देखें आपको टेम्परेचर ऑलरेडी मींस के जो डिफरेंस इन टेम्परेचर वो गिवन है, मतलब आप इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी था, आपने उसको राइज करना है अप टू 20 डिग्री, सो दैट मींस के जो चेंज इन टेम्परेचर होगा दैट विल बी 20 इन दिस केस, ठीक है ना। अब जो एनर्जी यहाँ पर है दैट इज 5.2 किलो जूल्स इज नीडेड। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अब देखें अगर आप देखें क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम जस्ट लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन, जस्ट हमने जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है दैट इज डिफरेंट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट इसमें जो आपको एनर्जी गिवन है दैट इज इन किलो जूल्स। सो रिमेंबर दिस थिंग, अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली फोकस करना है कि वेदर दे आर गिवन इन द करेक्ट फॉर्म या फिर कहीं पर आपको देयर इज अ नीड फॉर द कन्वर्जन। सो एज वी आर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन एसआई यूनिट्स, सो एनर्जी मस्ट आल्सो बी इन एसआई यूनिट, मतलब ये जो 5.2 किलो जूल्स है हमने इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। सो अब अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको इक्वेशन अरेंज करें, सो फॉर द सी दैट विल बिकम q upon m डेल्टा थीटा। अब आप देखें Q जो है दैट इज 5.2 किलो जूल्स, सो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द 1000। उसके बाद मास 2 किलोग्राम्स एंड जो टेम्परेचर चेंज है दैट इज 20 डिग्री। अब अगर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 130 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। अब आप ऑप्शंस में आप देखें जो आपको यूनिट्स गिवन है दे आर गिवन इन दिस फॉर्म, जूल उसके बाद स्लैश ब्रैकेट में लिखा हुआ किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई हैव डेलिबरेटली रिटन इस फॉर्म सो दैट यू कैन हैव आइडिया कि ये दोनों फॉर्म करेक्ट हैं, आप दोनों वेज में यूनिट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ वन मोर थिंग, देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 130 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, दैट मींस कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बट अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस किलो जूल को एनर्जी को जूल में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली पुट 5.2 और फिर आप सॉल्व करते तो आपके पास जो आंसर आता दैट इज 0.3 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दैट मींस दैट ऑप्शन इज also available, means that answer is also available in the option। तो अगर आप ये कन्वर्जन नहीं करते, आप कैलकुलेट कर लेते, आपको ये लगता कि ये आंसर अवेलेबल है, सो यू कुड चूज दिस ऑप्शन, सो दैट कुड बी एन इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि वेदर दे आर गिवन इन द करेक्ट फॉर्म और देयर इज अ नीड फॉर कन्वर्जन। नाउ ये जो हीट इक्वेशन है, अब इस हीट इक्वेशन में ये जो Q है that is the amount of thermal energy। now just recall in the chapter of energy हमने ये स्टडी किया था कि we can obtain या we can convert one form of energy from any other form, ठीक है ना। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। so that means के sometimes ऐसे होता है आपको डायरेक्टली अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी गिवन होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप किसी और सोर्स से थर्मल एनर्जी ऑब्टेन कर लें। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक रूम हीटर की बात करें तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिक रूम हीटर क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो दैट मींस समटाइम्स you also require कि from which form of energy you are obtaining that thermal energy, कौन से फॉर्म से आप वो थर्मल एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट इस इक्वेशन में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे आप ऑब्टेन कर रहे हैं थर्मल एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप जब थर्मल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं सो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर से आप एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, किस तरह ऑब्टेन करते हैं, देखें इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। पावर आप इस तरह फाइंड करते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर आप इस फार्मूला से एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं सो दैट एनर्जी विल बिकम पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इट मींस कि अगर इन केस इफ यू आर गिवन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उसको आप जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो यू कैन रिप्लेस दिस Q विद द पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, अगर आप इस Q को रिप्लेस करें पावर और टाइम्स के साथ, मींस इफ यू आर गिवन पावर एंड टाइम नॉट डायरेक्टली एनर्जी, सो यू कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू mc डेल्टा थीटा। या फिर ये जो थर्मल एनर्जी है वो अदर फॉर्म्स में भी ऑब्टेन हो सकती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल if you are opening this thermal energy या जो thermal energy that is being transferred from the some kind of gravitational potential energy, तो gravitational potential energy से अगर आप thermal energy obtain कर रहे हैं so gravitational potential energy किसके इक्वल होता है, mass multiplied by gravitational field strength multiplied by height। so you can replace this Q with the mgh because according to the law of conservation of energy जितनी एनर्जी थियोरेटिकली ऑब्जेक्ट लूज करता है उतनी गेन करेगा। मींस के अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट करें
थर्मल एनर्जी को, तो जितना ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा दैट ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी. सेम वे इफ यू आर गिवन द काइनेटिक एनर्जी जिसमें से आप ऑब्टेन कर रहे हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 1/2 multiplied by mass multiplied by square of the speed, because this is the formula of the kinetic energy. So this thermal energy can obtain again be obtained from kinetic energy as well. So these are the different forms जहां से हम thermal energy को obtain कर सकते हैं. अब इससे related एक question है वो हम देख लेते हैं. Now the question is that an electric shower takes in cold water at 17 degrees Celsius. ठीक है. The shower gives 6000 joules of energy every second. अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको एनर्जी गिवन है, this is not the total amount of energy, this is the amount of energy given in 1 second. मतलब जो शावर एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है, थर्मल एनर्जी मींस के जो सप्लाई कर रहा है, so that is 6000 every second. अब जितने देर के लिए वो पावर हीटर ऑन रहेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इंक्रीज होता रहेगा. और उससे आगे क्या है, to cool the water and heats it to 37 degrees Celsius. The specific heat capacity of water is given 4200 joules per kilogram per degree Celsius. What is the mass of the hot water supplied by the shower in 1 second? आपने ये बताना है कि जो शावर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप उसमें से 1 किलोग्राम सॉरी 1 सेकेंड के लिए आप मास ले रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितना मास वाटर का वो प्रोवाइड करेगा हॉट वाटर का, वो आपने फाइंड आउट करना है. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे क्वेश्चन इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं. हम ये जो एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं मींस के यहाँ पर हमें जो एनर्जी गिवन है दैट इज फॉर द एवरी सेकेंड, और हमें जो कैलकुलेट करनी है दैट इज आल्सो फॉर द 1 सेकेंड. इसका मतलब है हमने यही एनर्जी यूज करा है 6000, बिकॉज एवरी सेकेंड वो 6000 जूल कंज्यूम करा है, तो हमने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ही फाइंड आउट करनी है. सो दैट मींस कि एनर्जी हमारे पास होगी 6000. हमने फाइंड करना है मास, तो अगर हम इक्वेशन को अरेंज कर लें फॉर द मास, सो दिस इक्वेशन विल बिकम q upon c डेल्टा थीटा. अब हमने वैल्यूज पुट करनी है. अब हमने डायरेक्टली पुट किया है 6000, बिकॉज हमने जो मास फाइंड करना है दैट इज फॉर द 1 सेकेंड, तो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया मास दैट इज 0.71 किलोग्राम. बट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज दैट अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना होता कि वो मास लेट से 2 सेकंड्स के लिए 5 सेकंड्स के लिए फाइंड करना होता, तो इन दैट केस आपने ये एनर्जी 6000 नहीं लेना था, बिकॉज 6000 इज फॉर द 1 सेकेंड. अगर 2 सेकंड्स के लिए आपको फाइंड आउट करना होता मास, तो आप 6000 को 2 से मल्टीप्लाई करते. अगर 5 सेकंड्स के लिए फाइंड करना होता तो आप इसको मल्टीप्लाई करते 5 से, देन यू विल come to know how much mass it will provide in that particular amount of time. So this is all about this lecture. I hope your concepts are clear. If you still have any difficulty, if you still feel that anything which is not clear to you, so you can ask on my WhatsApp number. Allah Hafiz, have a nice day. Inshallah, see you soon with some more lectures on the thermal physics and other topics.